Good morning, all. So, good morning, all. And today we will discuss about IP addressing. In the last lecture, I have told you what are classful addresses. Okay, uh, within the category of IPv4, right? And in classful addresses, we have five classes basically: class A, B, C, D, and E. Where A, B, C classes are meant for unicasting and broadcasting, and class D is meant for the multicasting, and class E is basically reserved for some future use or research purpose. Okay, so continuing with this, today we will discuss about some of the concept of casting. That means what is unicasting and types of broadcasting. Also, today we will discuss about subnetting, okay, why subnetting is required and how the packet is basically routed using the subnetting concept. Okay, so let's start. First of all, the topic is casting. Basically, we have two type of casting: unicasting and broadcasting. I'm not talking about multicasting. Okay. And within the broadcasting also, we have two categories. Number one is we have limited broadcast and address, and we have directed broadcast address. Okay, so within the broadcasting, we have two categories of broadcasting, or we have two kinds of addresses. We have limited broadcast address and directed broadcast address. I will explain it to you with the help of some scenario. Okay. So suppose you are having some network. There is some network, and the network is like 100.1.2.3. Okay, so that is the IP address of this particular network. And within this network, we are having a host. Okay, that basically belongs to class A, so it would be like 0.0. Okay. Having network like 100.0.0.0. Okay. So that is that particular IP address belongs to class A. That's why we have 0.0.0 in the host ID part. Okay. Now we are having a host, and the host is having the IP address of like 100.1.1.1, and suppose we are having other hosts also, other hosts that are present in the same network. And suppose this particular host want to transmit a packet, wants to broadcast a packet
to each and every other host that are present in the same network. Okay, this particular host wants to send some data, wants to send some message to each and every other host that are present in the same network. So what could be done in this scenario? Yes, class. What could be done? अगर ये होस्ट मेरा बाकी दूसरे सिस्टम्स को, बाकी दूसरे होस्ट को एक मैसेज सेंड करना चाहता है, सबको सेम मैसेज ही सेंड करना है, क्या करना चाहिए? The one solution is ये होस्ट एक पैकेट क्रिएट करेगा और इस पैकेट में it would be having some message part, it would be having some source address part, it would be having some destination address part. Okay, so message part में तो data part आ जाएगा, source address में इसका खुद का आएगी, means 100.1.1.1 और DA में that means destination address में ये क्या काम करे, जितने host present है उतने network को create करे, जितने होस्ट हैं, ओके, उन सबको वो क्रिएट करे, राइट? जितने भी होस्ट प्रेजेंट हैं उतना वो पैकेट्स क्रिएट करे और सबके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस, उन होस्ट का डेस्टिनेशन एड्रेस डाल दे। एक तरीका तो ये, दैट मींस अगर इस नेटवर्क के अंदर टोटली मेरे पास 10 होस्ट थे तो वो ऐसे 9 पैकेट क्रिएट करेगा जिसके अंदर वो इनके डेस्टिनेशन एड्रेस को मेंशन करेगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? इट वुड मेक यूज ऑफ लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये कहता है कि डेटा फील्ड में या डेस्टिनेशन एड्रेस में अगर मैं सारी वैल्यू 1 कर दूंगा, डेस्टिनेशन एड्रेस में अगर मैं सारी वैल्यू 1 कर दूंगा, इसका मतलब क्या होगा? वो पर्टिकुलर एड्रेस या वो पर्टिकुलर पैकेट it would be broadcast to each and every host that is present in the same network. That means इस data address में क्या वैल्यू आ जाएगी? 255.255.255. मैंने आपको बताया भी था, अगर हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को ऑक्टेट्स की फॉर्म में शो करते हैं, डॉटेड डेसिमल की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर ऑक्टेट मेरा 8 बिट का, अगर मैं सारी वैल्यूज को 1 कर दूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी? 255, फिर नेक्स्ट ऑक्टेट अगेन 255, नेक्स्ट ऑक्टेट अगेन 255, अगेन 255। तो इस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, LBA। इसको हम लिमिटेड क्यों बोल रहे हैं? दैट इज लिमिटेड टू दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। अगर मैं यहां किसी सिस्टम को सेंड करना चाहूंगा ये पैकेट, इट वुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट। ओके, सो व्हाई इट इज नोन एज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस? बिकॉज इफ द डेस्टिनेशन एड्रेस कंटेन्स दिस वैल्यू 255, 255, 255, 255, इसका मतलब क्या होगा? सेम नेटवर्क के अंदर, जिसके अंदर भी वो सोर्स प्रेजेंट है, सेम नेटवर्क के अंदर आपका जो भी मैसेज है वो सारे के सारे होस्ट को ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, बट आउटसाइड द नेटवर्क इट वुड नॉट बी ट्रांसफर्ड। ओके, सो दैट इज नोन एज नंबर 1 थिंग, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, नाउ we'll explain you the second type of broadcast address, that is the directed broadcast. Okay, the second thing is, what if we are having one more network, that is 200.1.2.0। ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू क्लास C, 200.1.2.0। ओके, तो सपोज यहां पर भी ऐसे ही होस्ट प्रेजेंट होंगे। Suppose my same host wants to send some packet to
each and every host that is present in the remote network. अब हम क्या करना चाह रहे हैं, किसी रिमोट नेटवर्क के अंदर सारे के सारे होस्ट को, किसी पैकेट को हम क्या करना चाह रहे हैं, ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल एड्रेस बनाया गया, दैट इज नोन एज डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, क्योंकि हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट किया, और डायरेक्ट करने के बाद ये क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। तो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या बोलता है, केवल होस्ट पार्ट में सारी वैल्यू वन। ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, एड्रेस क्लास सी। इसमें फर्स्ट 3 ऑक्टेट मेरे किसके होंगे, फर्स्ट 3 ऑक्टेट बिलोंग्स टू द नेटवर्क आईडी एंड लास्ट ऑक्टेट बिलोंग्स टू द होस्ट आईडी। होस्ट आईडी में सारी वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो। ओके, सो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या बनेगा इस केस में, 200.1.2.250। तो ये ध्यान रखना आप लोग, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, तो अब एक चीज पर मैं दोबारा आ रहा हूं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस। ओके, कितने असाइन कर सकते हैं, जैसे कि 2⁻16 था, ओके, या फिर 2⁻31 था। तो हमेशा नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेसेस दैट आई कैन असाइन टू ए होस्ट, वो हमेशा -2 होते हैं। वो -2 किस लिए होगा, क्योंकि बच्चे याद रखो, हमेशा पहला आईपी एड्रेस नेटवर्क की आईडी बनता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 100.000 दैट बिलोंग्स टू क्लास ए, और है ना, ये क्या बना मेरा, होस्ट आईडी में सारी वैल्यू 0 है, तो ये भी तो एक आईपी एड्रेस है। तो हमेशा पहला आईपी एड्रेस मेरा क्या बनेगा, वो बनता है मेरा नेटवर्क का एड्रेस, और लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर नेटवर्क वो हमेशा मेरा क्या बनता है, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो आप ये चेक करो, देखो 200.1.2.0, तो ये नेटवर्क का एड्रेस, ये किसी को असाइन नहीं करते हैं। ओके, जब मैं किसी होस्ट को असाइन नहीं करूंगा तो -1 हो गया अपने आप। दूसरा चेक करो, DBA डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस 200.1.2.255, यानी कि किसी भी नेटवर्क का पहला और लास्ट आईपी एड्रेस मैं किसी को भी असाइन नहीं करता, वो उनका एक स्पेशल पर्पस होता है। फर्स्ट आईपी एड्रेस का क्या स्पेशल पर्पस है, नेटवर्क एड्रेस बताता है, और लास्ट क्या बताता है हमें, आईपी एड्रेस लास्ट बताएगा हमें डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताएगा। इसलिए नंबर ऑफ आईपीस, ये मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, नंबर ऑफ वैलिड आईपीस जो होती है हमारी हमेशा -2 होती है। ओके, सो दैट इज द कांसेप्ट अबाउट लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। कोई डाउट इसमें? नंबर ऑफ वैलिड आईपी कितनी होती है, -1। नंबर ऑफ वैलिड आईपीस दैट आई कैन असाइन इज ऑलवेज -2, क्योंकि पहला आईपी हमेशा नेटवर्क का एड्रेस बनता है और लास्ट आईपी हमेशा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ओके, ओके, सो अब हम बात करेंगे सबनेटिंग। Subnetting is basically dividing the network, dividing a big network into smaller network. Dividing a big network into smaller network, that is known as subnetting. और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो सबनेटिंग में जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस साइड के एड्रेस 200.1.2.0, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, रिप्लाई करो मुझे। इट बिलोंग्स टू व्हाट क्लास, 200 सी। ओके, जब ये सी क्लास को बिलोंग करेगा, सीधी सी बात है, इसमें पहले 3 पार्ट मेरा क्या होगा, नेट आईडी, और ये मेरा पार्ट क्या होगा, होस्ट आईडी।
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितने होस्ट मैं ऐड कर सकता हूँ, 2⁸ यानी कि 256। ओके, यानी कि कितने होस्ट हम ऐड करेंगे, 256, और यहाँ पर नेटवर्क कितने बनेंगे मेरे, 2⁻, तो बताया नहीं था मैंने कितने क्लास सी में। हाँ जी, चेक करो, 2⁻, 0, 21, 2⁻21 नेटवर्क्स है। ओके, तो सपोज अगर मैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क को फर्दर ब्रेक करना चाहता हूं, सब नेटवर्क मुझे ग्रुपिंग करनी है। फर्दर ब्रेकिंग का, जैसे मैंने उस दिन आपको पार्टीशनिंग बताया था, रेंज कैसे फाइंड आउट की थी, तो मैंने क्या लिया था, पहली बिट, फिर सेकंड बिट, फिर थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट, ऐसे लिया था। तो ऐसे ही हम ग्रुपिंग करने के लिए भी यहाँ पर लेंगे। तो पहली चीज, सबनेटिंग में क्या होता है, देखो जब एक मेरे पास बड़ा नेटवर्क होगा तो बड़े नेटवर्क को मैनेज करना या मेंटेन करना वो काफी डिफिकल्ट है। तो क्या किया जाता है, बेसिकली बड़े नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क में ब्रेक किया जाता है। जिससे ब्रेक करने से क्या होगा, वो जो सब नेटवर्क बनेंगे, सब नेटवर्क का मेंटेनेंस और मैनेजमेंट इजी होगा, पहली चीज। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग इट प्रोवाइड्स अस सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। ये हमें एक तरह की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक बिग नेटवर्क है मेरा, और इस बिग नेटवर्क को एक मेरा राउटर लगा दिया, उसको मैंने फर्दर 2 सब नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। ओके, जब मेरा 2 सब नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, या फिर एक तरह से ऐसे मानो, हमने एक बिग नेटवर्क सब नेटवर्क्स में डिवाइड किया, मैंने 4 पार्ट बना दिए सब नेट, इस बिग नेटवर्क के। एक पार्ट मान के चलो, सपोज वन नेटवर्क एक कंप्लीट नेटवर्क था। ओके, वन नेटवर्क एक तरह से समझो इसको मैनेजमेंट के लिए, वन कोडर्स के लिए, वन टेस्टर के लिए, और एक दे दिया ऑपरेशन के लिए। अब आप ये समझो, जो मैनेजमेंट वाली जो टीम है या फिर जो ऑपरेशन वाली टीम है, क्या वो मैनेजमेंट के सिस्टम को एक्सेस करना चाहिए उसको? नो, इट शुड नॉट बी अलाउड। ओके, ऑल्दो दे आर ए पार्ट ऑफ ए कॉमन नेटवर्क, हमने उसके इंटरनली क्या कर दिया, सब नेटवर्क क्रिएट कर दिए। जो मेरा कोडर है, कोडर क्या मैनेजमेंट, टेस्टर या ऑपरेशन के किसी सिस्टम को एक्सेस करना चाहिए? नो, इट शुड नॉट बी अलाउड। ओके, या जो मेरी ऑपरेशन टीम है, ऑपरेशन टीम में जो भी मेरे पर्सन होंगे, क्या वो मैनेजमेंट, टेस्टर या कोडर के किसी सिस्टम को एक्सेस करने चाहिए? नो, दे शुड नॉट बी अलाउड। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक कंप्लीट नेटवर्क को सब नेटवर्क में डिवाइड कर रहे हैं। बेटर होगा यहाँ का एग्जांपल लीजिए, जैसे कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं या जो भी आईपीज हैं, उसको हम किसी भी जगह से एक्सेस नहीं कर सकते, नॉट इवन फ्रॉम द हॉस्टल्स ऑल्सो। वो केवल एकेडमिक ब्लॉक से ही एक्सेस किए जा सकते हैं। तो एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है मुझे सब नेटवर्क, या सबनेटिंग से मुझे सिक्योरिटी मिलती है। ओके, दूसरी चीज अगर हम बात करें, सबनेटिंग से सिक्योरिटी तो मिल गई, लेकिन ये एक एडिशनल प्रोसेसिंग भी इंक्लूड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक नेटवर्क को 2 नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, एक नेटवर्क को 2 सब नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। तो सपोज कोई प्रोसेस है मेरी, है ना, कोई मेरा होस्ट है एक पर्टिकुलर सबनेट के अंदर, और यहाँ पर मेरी कोई प्रोसेस बन जाती है। पहले हम क्या करते थे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था आईपी के, सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क, देन
विद इन द नेटवर्क मुझे कौन से सब नेटवर्क में जाना है ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो फर्स्ट नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, यानी कि फर्स्ट वी नीड व्हाट, नेटवर्क आईडी, देन व्हाट वी नीड इज सबनेट आईडी, और सबनेट आईडी के बाद मुझे कहां पर जाना है, होस्ट आईडी पर। वी नीड व्हाट, होस्ट आईडी, और होस्ट पर आने के बाद वी नीड व्हाट, प्रोसेस आईडी। तो 4 लेवल की हायरार्की मेंटेन हो गई है। पहली हायरार्की, मुझे नेटवर्क आईडी चाहिए टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क। फिर नेटवर्क के अंदर कौन से वाले सबनेट पर जाना है, मुझे इस वाले पार्ट पर जाना है या इस पार्ट पर जाना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, सबनेट आईडी। सबनेट आईडी के बाद उस सबनेट के अंदर कौन से होस्ट पर जाना है। ओके, तो किसी होस्ट पर मैं जाऊंगा, उस होस्ट की मुझे आईडी चाहिए। उस होस्ट के अंदर कौन सी प्रोसेस को मुझे एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे प्रोसेस आईडी चाहिए। ओके, तो एक एडिशनल हायरार्की मेंटेन हो गई यहाँ पर, और एडिशनल हायरार्की से प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। बट हम कंपेयर करते हैं द लेवल ऑफ सिक्योरिटी, और हम इसको कंपेयर करते हैं द हेडेक टू मेंटेन, टू मैनेज एंड मेंटेन द स्मॉलर नेटवर्क is comparatively more prominent than the maintaining this level of hierarchy. ओके, तो यहाँ पर हमारे लिए सबनेटिंग ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, बजाय इसके कि मुझे यहाँ पर प्रोसेसिंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़े। ओके, तो रिजल्ट ऑफ सबनेटिंग इज मोर प्रोमिनेंट। ओके, सो एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्लास सी के लिए। मेरा आईपी है इसका 200.1.2.0। ओके, 200.1.2.0। मैं इस नेटवर्क को 2 सबनेट में डिवाइड करूंगा। जब मैं 2 सब नेटवर्क में डिवाइड करूंगा, सीधी सी बात है, मेरा ये पहले 3 पार्ट क्या हो गए, नेटवर्क आईडी, और दूसरा पार्ट मेरा क्या है, होस्ट आईडी। अब हम इसमें एक और आईडी आ जाती है, कौन सी, सबनेट की आईडी। सीधी सी बात है, जब मैं 2 ग्रुप बना रहा हूं, 2 ग्रुप बनाने के लिए कितने बिट्स चाहिए टू रिप्रेजेंट, हाउ मेनी बिट्स आई रिक्वायर टू रिप्रेजेंट 2 ग्रुप्स। Yes, class. How many bits are required to represent 2 groups? SST हाँ, 29 आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। 29 99 29 29 बेटा, 2 ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है मुझे, और 2 ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो याद करो, मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था आपको। सबसे पहले मैंने क्या लिया था, इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। कितनी बिट्स ली थी, ओनली 1 बिट। वो 1 बिट मैं कहां से लूंगा, आई विल बोरो दैट बिट फ्रॉम द होस्ट आईडी पार्ट। आई विल बोरो दैट बिट फ्रॉम द होस्ट आईडी पार्ट। तो मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूंगा, होस्ट आईडी पार्ट को। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये 8 बिट है मेरी होस्ट आईडी। होस्ट आईडी पार्ट से हम बोरो करेंगे 1 बिट के, क्योंकि मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है, मुझे 2 ग्रुप बनाने हैं, एक सबनेट ये, एक सबनेट मेरा ये। ओके, तो इस सबनेट में क्या रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस जाएगी, और इस सबनेट में क्या रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस जाएगी। अगर मैं इसको कंप्लीटली एक नेटवर्क मानता हूं, तो रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस क्या बनेगी, बताएगा कोई, रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस क्या बनेगी यहाँ पर, 200.1.2.0 से लेके लास्ट आईपी एड्रेस क्या जाएगा, 200.1.2.255। ओके, क्यों, क्योंकि होस्ट आईडी में एक तो सारी वैल्यू 0 रखता हूं, होस्ट आईडी में सारी वैल्यू 1 रखता हूं। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर ब्रेक कर रहे हैं।
टू पार्ट्स। अब मैं आपको ये बता रहा हूं अब रेंज मेरी क्या बनेगी। ओके, यहां पर सबसे पहले वी आर टेकिंग दिस वैल्यू एज 0। इस वाले ग्रुप के लिए मैं सबनेट वैल्यू क्या मान के चल रहा हूं, 0। जब सबनेट की वैल्यू 0 मैं मान के चलूंगा और सारी वैल्यू अगर मैं यहां 0 लिखता हूं तो ये क्या बनेगा, 0। 0। यानी कि 200.1.2.0 और लास्ट आईपी क्या बनेगा, इसको 0 को तो हम इंटैक्ट रखेंगे, 1 1 1 1 1 1 1। क्या वैल्यू बनी है, 2। क्या वैल्यू बनी, 7 1। 128 7 1 128 है 128 बच्चों, घर पे हो अब तो पढ़ाई करना शुरू कर दो। 128 7 1 अच्छा 64 60 यस 7 नंबर ऑफ वंस क्या वैल्यू आएगी, 7 नंबर ऑफ वंस इसमें ये शाम कर दोगे तो सीख लिया आईपी एड्रेस 63 या 127 क्या बनेगा, 127 200.1.2.127 2 raised to the power 7 minus 1 -1 हो जाएगा सर। हाँ, तो 127। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप से। दूसरे ग्रुप के लिए पहली बिट को मैं क्या मानूंगा, 1। ओके, और इसकी पहली वैल्यू क्या बनेगी, अगर मैं पहली बिट को 1 मानता हूं तो 128। 128 200.1.2.128। हाँ जी, लास्ट एड्रेस क्या जाएगा, जल्दी बताओ, 8 वंस, जल्दी से आंसर आना चाहिए था इसको। 8 नंबर ऑफ 1 255 हो जाएगा। 255। 255 255। ओके, सो अगर मैं सबनेट करता हूं, ये ध्यान रखो, अगर मैं सबनेटिंग कर रहा हूं, सबनेटिंग जब हमने की तो फिर से ध्यान रखो, हमने क्या किया, एंटायर आईपी एड्रेसेस को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जब मुझे 2 ग्रुप बनाने हैं तो कितनी वैल्यू को कंज्यूम करूंगा, ओनली ए सिंगल बिट। और ये मुझे बोरो कहां से करनी होगी, होस्ट आईडी पार्ट से। कहां से बोरो कर रहा हूं मैं, ये होस्ट आईडी पार्ट से। ओके, अगर मैं इसकी पहली वैल्यू 0 रखता हूं तो लेफ्ट साइड में रेंज होगी वो मुझे पता लग जाएंगी, और अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूं तो राइट साइड में जो रेंज होगी वो मुझे पता लग जाएगी। ओके, अगर मैं इसको यहां पर आया तो यहां पर रेंज में 0 से लेके 127 तक बनी, और ये मेरी 128 से लेके 255 तक। ओके, अब फिर से आ जाओ जरा, सबनेटिंग में नेटवर्क एड्रेस की अगर हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था पहला आईपी एड्रेस एंड लास्ट आईपी एड्रेस वो यूज नहीं करते। क्यों, पहला आईपी एड्रेस मुझे क्या बताता है, ये भी तो एक आईपी है, 200.1.2.0, ये मुझे क्या बता रहा है, नेटवर्क का एड्रेस। और लास्ट आईपी एड्रेस इसका क्या था, यही तो था बेसिकली, ये मुझे क्या बता रहा है बेसिकली, DBA, that is directed broadcast address. ओके, अब बेटा यहां पर आना जरा, जब मैंने सबनेटिंग में ब्रेक कर दिया, जब सबनेट में ब्रेक कर दिया तो ये एड्रेस मुझे क्या, मैं किसी होस्ट को असाइन कर सकता हूं, दोनों एड्रेस, सोच के बताओ, क्या ये दोनों एड्रेस मैं किसी होस्ट को असाइन कर सकता हूं,
ये एड्रेस किसका बनेगा? मेरा सबनेट का, इस सबनेट। सब नेटवर्क का एड्रेस, और ये एड्रेस क्या बनेगा? इस सब नेटवर्क का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं तो इसका ये पहला एड्रेस मेरा क्या बनेगा? इस सब नेटवर्क का, अगर Direct. सेकंड सब नेटवर्क का नेटवर्क का एड्रेस, नेटवर्क और एड्रेस। लास्ट वाला आईपी मेरा क्या बनेगा? सेकंड Direct. सब नेटवर्क का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो आप ये देखो, जब मैंने एक सिंगल नेटवर्क लिया, मैं 2 आईपी यूज नहीं कर पा रहा था। जब मैंने इसको ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स में, अब मैं 4 आईपी यूज नहीं कर पाऊंगा। तो जितने सब नेटवर्क में आप ब्रेक करते रहोगे, उतने टाइम्स के हिसाब से आपके आईपीज वेस्ट होते रहेंगे। इनिशियली कितने आईपी वेस्ट हो रहे थे? 2, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। अब 2 पार्ट में डिवाइड किया, आप कितने आईपीज आपके वेस्ट हो रहे हैं? 4 आईपी वेस्ट हो रहे हैं। ओके, फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। अब आप नहीं, मुझे कुछ बताओ। इस बार मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। सेम नेटवर्क है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मुझे रेंज बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स आई शुड बोरो फ्रॉम द होस्ट आईडी पार्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट 4 सब नेटवर्क? 2 हो जाएंगे सर। कितनी? 2। 2? ओके, वेरी गुड। यस सर। तो अगेन 8 बिट लिखो, एक्सपेंड करके 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 2 बिट मैंने फिक्स कर दिया। अब 2 बिट में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 इसको मान लो, 0 1 Yes, इसको sir. मान लो, है ना? 1 0 इसको मान लो, और 1 1 इसको मान लो। आगे पहली रेंज बताइए मुझे, क्या बनेगी? 0 First bit। तो 0 0 से पहले सब नेटवर्क की रेंज बताओ, कंप्लीट रेंज। सर 63 तक हो जाएगा। 2 0 0 0 से 63। हाँ जी, अगली रेंज बताओ मुझे। सर 64 से 127। 64 से 127 अगली रेंज बताइए मुझे। 128 से 128 से how much? तो 191 How much? 191 Yes, 191। ये लास्ट वाला 192 से 192 से 255 250। अब ध्यान रखो, इसमें कितनी आईपी वेस्ट हो रही है टोटल? 4 पहली वाली, इसकी लास्ट वाली वेस्ट हो जाएगी, किसी को असाइन नहीं कर सकता। यस सर इसकी भी फर्स्ट और लास्ट, इसकी भी फर्स्ट और लास्ट, इसकी भी फर्स्ट और लास्ट, यानी कि टोटल 8 आईपी I cannot assign. Total 8 IPs I cannot assign. एक और चीज आना है यहाँ पर, एक और चीज हम बोलते हैं सबनेट मास्क। आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा है, सब जगह लिखा है जैसे सबनेट मास्क। अब ये सबनेट मास्क क्या है? यानी कि अगर मैं नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी के प्लेस पर सारी वैल्यू अगर मैं 1 लिख देता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सबनेट मास्क। बेटा यहां पर ध्यान दो जरा, यहाँ पर ये तीनों क्या है? ये 24 बिट्स क्या है मेरी नेट आईडी, और नेट ये 2 बिट्स मेरी क्या बनती, वो बताती है मुझे सबनेट आईडी, आईडी है ना? तो यहाँ पर अगर मैं इन सारी वैल्यूज की प्लेस पर 1 लिख देता हूं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? सबनेट मास्क। इसको लिख के देखते हैं। अगर मैंने इस प्लेस पर सारी वैल्यू 1 लिखता हूं तो क्या वैल्यू बनेगी? 255 डॉट। यहाँ पर भी सेकंड ऑक्टेट में भी सारी वैल्यू 1 कर देता हूं, क्या वैल्यू बनेगी? 255 255
थर्ड में भी, क्योंकि मुझे सारी की सारी 24 बिट्स को क्या करना है, वन, ये वैल्यू क्या बनेगी 255 255। अब आना इस पर, मुझे क्या लिखना है, केवल सबनेट आईडी पार्ट पर अनवन लिखना है, बाकी सारी वैल्यू जीरो रहेगी। क्या वैल्यू बनेगी बताओ जरा, अभी आप लोगों ने कैलकुलेट भी किया है क्या, 255 ये मेरा सबनेट मास्क बनेगा फॉर दिस पर्टिकुलर सबनेट, ये मेरा सबनेट मास्क बनेगा फॉर दिस पर्टिकुलर सबनेट। आए समझ में? हम क्या करते हैं, नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी पार्ट पर, जो इतना भी पार्ट है नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी पार्ट पर, सारी वैल्यूज 1 कर देते हैं, और होस्ट आईडी पार्ट पर सारी वैल्यू क्या कर देते हैं 0। ओके, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 255 255 255.190। ओके सर हाँ, सर जो सर आपने बताया कि जो आईपीज वेस्ट हो रही हैं सर, वो तो मतलब 2 तो पहले ही हो रही थी ना, बाकी 6 हो रही हैं। पहले 2 हो रही थी, यस सर, सबनेटिंग से पहले कितनी वेस्ट हो रही थी, ओनली 2। 2। अब कितनी हो रही है 8, 8 हो रही है। यस सर, है ना? तो जितने ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स कर देना उसके, उतनी आईपीज आपकी वेस्ट होगी। अब आते हैं, थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी है, उसको हम देखते हैं क्या है। ओके, सपोज पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, मैंने इस नेटवर्क को 2 नेटवर्क में डिवाइड किया। ओके, 200.1.2.0। ओके, ये मेरा नेटवर्क है 0 से लेके 127 तक, और ये मेरा है 128 से लेके 255। ओके, अब सपोज बाहर से कोई सिस्टम या बाहर से कोई पर्सन एक पैकेट सेंड करता है, जिसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस जो है मेरा, जिसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा 200.1.2.255 200.1.2.255 है, उसको दिख रहा है आपको? ओके, .255 है। बाहर से एक पैकेट आया जिसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है 200.1.2.255। ये क्या है, बाहर से एक पैकेट आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, ये पैकेट क्या सारे के सारे सिस्टम्स, एक तरह का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, क्या ये सारे के सारे सिस्टम्स को या सारे के सारे होस्ट को सेंड किया जाएगा, या फिर केवल इसी सब नेटवर्क में ही ब्रॉडकास्ट होगा? सर वो तो डायरेक्टेड है, तो सबको लिए होगा ना। डायरेक्टेड है, ओके। तो क्या ये डायरेक्टेड एड्रेस केवल इस सबनेट में ही ब्रॉडकास्ट होगा, या एंटायर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होगा? सारे नेटवर्क में ही होगा सर। सारे नेटवर्क। वाई? अगर हम देखते हैं भाई, इस सब नेटवर्क का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है 255 ही तो है, और एंटायर नेटवर्क का भी क्या है ब्रॉडकास्ट एड्रेस 255। आ रही है बात समझ में? यस सर। एक तो पहली एम्बिग्यूटी ये। दूसरी एम्बिग्यूटी, अगर मान लो मैं इस नेटवर्क को स्पेसिफाई करता हूं, इस नेटवर्क का एड्रेस क्या है 200.1.2.0, और इस सब नेटवर्क का भी पहला एड्रेस क्या है 200.1.2.0, ये भी एम्बिग्यूटी है। यस सर। भाई 200.1.2.0 क्या ये पूरे नेटवर्क को स्पेसिफाई कर रहे हैं, या हम एक सब नेटवर्क को स्पेसिफाई कर रहे हैं? सबनेट। नो, वी कैन नॉट से, हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का एड्रेस तो सेम ही है। यहां पर भी अगर हम देखते हैं, दोनों एंटायर नेटवर्क का डीबी है और इस सब नेटवर्क का डीबी है, दोनों सेम है। तो क्या इस सब नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट होंगी या एंटायर नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट होंगी? वी डोंट नो।
ये डिपेंड करेगा रेफरेंस के हिसाब से। अगर पैकेट बच्चे बाहर से आ रहा है, बाहर वाले को नहीं पता इंटरनली कितने सब नेटवर्क डिवाइडेड है, ओके, सो बाहर वाले को नहीं पता इंटरनली नेटवर्क को कितने सबनेट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर पैकेट बाहर से आएगा और उसमें सपोज एड्रेस होगा 200.1.2.255, it would be broadcasted to each and every host that is present in the entire network. और अगर मान लो पैकेट ब्रॉडकास्ट यहां से जनरेट हुआ इंटरनली और उसके अंदर वही एड्रेस होगा .255, तब वो इस सब नेटवर्क के अंदर ही ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो इट डिपेंड्स आप कहां से पैकेट सेंड कर रहे हो। अगर बाहर से है तो बाहर वाले को इंटरनली कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, बाहर वाले के लिए तो ये ही नेटवर्क काम करेगा, एंटायर नेटवर्क, वो सबनेट्स को नहीं जानता, ओके। अगर यहां से रिक्वेस्ट जनरेट होती है, इंटरनली रिक्वेस्ट जनरेट होती है, तो केवल इस सबनेट पर ही ब्रॉडकास्ट होगा, फिर इस वाले पर ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। और अगर रिक्वेस्ट बाहर से आए, एक्सटर्नली आए, तो इस पर भी ब्रॉडकास्ट होगा और इस पर भी ब्रॉडकास्ट होगा, बिकॉज बोथ आर पार्ट ऑफ द मेन नेटवर्क। आ रही है बात समझ में? एम्बिग्युइटी क्या थी? ये बात आई समझ में? क्या एम्बिग्युइटी थी? पहली एम्बिग्युइटी ये समझना, जो मेन नेटवर्क का एड्रेस है वो पहले सब नेटवर्क का भी एड्रेस है, पहली एम्बिग्युइटी। सेकंड एम्बिग्युइटी क्या होती है, जो आपका लास्ट सब नेटवर्क का डीबीए है, सेम डीबीए आपका मेन नेटवर्क का भी होता है। So there are two ambiguities in this scenario. इस एम्बिग्युइटी को रिजॉल्व कैसे करते हैं डिपेंड करता है आपकी ब्रॉडकास्ट की रिक्वेस्ट कहां से जनरेट हुई। अगर एक्सटर्नली जनरेट होती है तो एक्सटर्नल के लिए तो एंटायर नेटवर्क काम करता है, वो सबनेट को नहीं जानता। और अगर रिक्वेस्ट इंटरनली जनरेट होती है तो इंटरनली होगी, तो सीधी सी बात है वो फिर इन सबनेटवर्क्स को जानता है। तो फिर ये जो राउटर है वो ये काम करेगा। तो अगर यहां से रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो जो भी ब्रॉडकास्ट होगी वो इस सबनेट के अंदर ही होगी, और अगर बाहर से रिक्वेस्ट आई है तो इट वुड बी ब्रॉडकास्टेड टू हियर एंड हियर। ओके, समझ में आया? यस। एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझना। ओके, देखो एक तरह से ऐसे समझो, आउटसाइडर को नहीं पता आपके इंटरनली हॉस्टल्स कैसे डिवाइडेड हैं, फ्लोर वाइज हैं या पूरे एक लाइन से रूम बने हुए हैं, उसको नहीं आइडिया। बाहर वाला केवल क्या लिख के देगा, GLA यूनिवर्सिटी आपका नाम लिख के दे देगा, है ना, हो सकता है हॉस्टल का भी नाम लिख के दे दे, लेकिन उसको नहीं पता कौन से फ्लोर पर है रूम। ओके, सो ये डिपेंड। और अगर रिक्वेस्ट इंटरनली आए, यानी कि आपके वार्डन जानते हैं कि हमारे हॉस्टल्स कैसे डिवाइडेड, कौन सा रूम कौन से फ्लोर पर आएगा, उनको आइडिया है, उस हिसाब से चीजें ब्रॉडकास्ट होंगी या चीजें ट्रांसमिट। ओके, सो यहां पर सबनेटिंग में, अगर हम सबनेटिंग में फिर से सुनो सबनेटिंग की कहानी। पहली चीज, सबनेटिंग is basically the breaking up of a big network into smaller network. जब मैं ब्रेकिंग करूंगा, सीधी सी बात है, मुझे हर एक सब नेटवर्क को आईडी देनी पड़ेगी। आईडी देने के लिए, वो आईडी के लिए मैं कहां से बिट्स लाऊं? we have to borrow bits from the host id part. सीधी सी बात है, होस्ट आईडी पार्ट की बिट्स कम करो तो नंबर ऑफ होस्ट कम कनेक्ट होंगे, सीधी सी बात है ना। तो हम बेसिकली कहां से बिट्स बोरो करेंगे? सबनेट आईडी से, वो होस्ट आईडी पार्ट से। ओके, इट डिपेंड्स कितने सबनेट्स यू वांट टू क्रिएट, तो उतनी बिट्स मुझे बोरो करनी पड़ेगी, उस हिसाब से मुझे बिट्स को बोरो करना पड़ेगा।
ओके, जब हम सबनेट्स में ब्रेक कर रहे थे, सीधी सीधी बात है, ये मुझे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। और जब हम सबनेट में ब्रेक करते हैं, जब इन ओरिजिनल नेटवर्क की हम बात करते हैं, तो ओनली 2 IPs आर वेस्टेड, द वेरी फर्स्ट IP एंड द लास्ट IP। लास्ट IP आपकी DBA बनती है, फर्स्ट IP आपकी क्या बनती है, नेटवर्क का एड्रेस बनता है। ओके, जब हम सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, तो हर एक सबनेट में भी 2 IPs आपकी वेस्ट होती है। पहली IP क्या बताती है आपको, सबनेट की एड्रेस, सबनेट एड्रेस। ओके, दूसरा IP आपको क्या बताएगी, उसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, अब यहाँ पर 2 तरह की एम्बिग्यूटी आती है। पहली एम्बिग्यूटी, जो आपका फर्स्ट सबनेट होगा उसका पहला IP और जो आपका मेन नेटवर्क है उसकी पहली IP, दोनों सेम होते हैं, पहली एम्बिग्यूटी। सेकेंड एम्बिग्यूटी, तो आपका लास्ट सबनेट है उसका DBA, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और जो आपका मेन नेटवर्क है उसका DBA, दोनों को दोनों सेम होते हैं। तो इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट कहाँ से जनरेट होती है, फ्रॉम व्हाट लोकेशन। अगर एक्सटर्नली जनरेट हुई, तो एक्सटर्नली के लिए क्या होता है, द एंटायर नेटवर्क वुड बी कंसीडर्ड। इंटरनली जनरेट हुई, फिर इंटरनली जो राउटर है वो जानता है कि हाँ, नेटवर्क को हमने सबनेट्स में डिवाइड किया। ओके, सो दिस इज हाउ द एम्बिग्यूटी इज रिजॉल्व। बाकी कहानी इससे रिलेटेड, सबनेट से रिलेटेड आगे देखेंगे। ओके, सो आई एम एंडिंग नाउ। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है, इशू है, आप इस वीडियो को सेव करना और इसको एक बार देख लेना। थैंक यू।